हाय एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 6 ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्रस्ट कोर मेंटल के बारे में इन डेप्थ पढ़ा था, राइट? एंड अलोंग विद इट वी आल्सो अंडरस्टैंड कि कितने लेंथ पे कितनी डेप्थ पे आपके कौन कौन से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आपके क्रस्ट कोर मेंटल की, एंड हाउ द लेयरिंग चेंज, एंड कैसे आपका पी एंड एस वेव्स ट्रैवल करते हैं, राइट? वो सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। इन 5 वी डिस्कस अबाउट क्रस्ट कोर mental, right? And what are the different properties, है ना? So in today's lecture, which is 6, we'll discuss about the supercontinents, ठीक है? A new concept, and as per this new concept, we'll understand what is supercontinent cycle, Pangea, Pangea के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? How अभी हम जानते हैं कि 7 continents हैं in total, ठीक है? But 200 million years पहले there used to be only one continent, right? उसका नाम था पेनगे, ठीक है? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दिस विल आल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है? सीडीटी, ठीक है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसके अंदर हम आपका पूरा इन डेप्थ में जानेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट क्या था, व्हाट वर द रीजन गिवन बाय दिस साइंटिस्ट, क्लाइमेटोलॉजिस्ट था एल्फ्रेड वेगनर, ठीक है? एल्फ्रेड वेगनर, ठीक है? इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, विल अंडरस्टैंड हिज कॉन्सेप्ट एंड हाउ और व्हाट आर द रीजंस ही गेव, कि जिसके बेसिस पे वी कैन श्योरली बिलीव दैट यस, आज के टाइम पे 7 कॉन्टिनेंट्स होने से पहले देयर यूज्ड टू बी ओनली वन कॉन्टिनेंट। व्हाट आर द एविडेंसेस ही गेव इन सपोर्ट ऑफ हिज थ्योरी, ठीक है? एंड एज पर हिम व्हाट आर द फोर्सेस ऑफ ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग हियर मींस ड्रिफ्टिंग ऑफ लैंड मास, ड्रिफ्टिंग ऑफ लैंड मास, ठीक है? ड्रिफ्टिंग ऑफ लैंड मास, ठीक है? अब लैंड मास के ड्रिफ्टिंग का क्या मतलब है कि हाउ वन कॉन्टिनेंट बिकेम 7, ठीक है? तो व्हाट ऑल द फोर्सेस एज पर हिज थ्योरी विल, और वो हम पढ़ेंगे साथ में। विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द क्रिटिसिज्म ऑफ वेगनर्स थ्योरी, ठीक है? देयर वर मल्टीपल अदर साइंटिस्ट्स who were against the theory of Wegener's, ठीक है? So with all this we'll understand, but before this a quick uh, overview, और ठीक है? So this was a quick overview about our today's lecture. Let me tell you about amazing app Sparky AI. With Sparky AI, you can enhance your vocabulary, grammar, and reading skills in whichever language you want. It provides real-time feedback on your English speaking or for any language that you choose. In the app, you'll get intelligent AI, English speaking buddy Sparky, who can talk to you about anything. Sparky AI can help you in learning English through conversations or any language that you choose. Sparky AI can be used by people of all levels depending on their English proficiency, whether it's beginner or expert. Sparky AI also offers variety of games and videos. So go and download the amazing Sparky AI. Link to download the application is in the description. So here's an example. Hi. What's your dream job, Leo? My dream job is accounts receivable in healthcare industry. That's a well-structured response, Leo. You're aiming high. What interests you about accounts receivable in the healthcare industry? Because accounts receivable main job role is speaking English. Hi. To start with Sparky AI is very easy. You just have to download the application with the link that is mentioned in the description. And once you start with it, it's very easy. You have to specify your age and the languages in which you want to, get the knowledge, or you want to improve the pronunciation. So here's a quick look. So you can select your mother tongue. You just select your age group, what you want to do. If I've selected here English, right, what are my interests and everything. So it will eventually help the AI to build your interest specific background, and accordingly the conversation can be picked. What is your name? Okay,
Okay, so coming back to the topic, so this is the prefix कि हम आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, right? Now, so basically we'll start with the basic concept or basic understanding of supercontinent. Supercontinent का मतलब क्या होता है? ठीक है. So supercontinent basically आपका सेंस क्या बनता है कि if you could, अगर सिंपल सी बात बोलूँ तो आज के टाइम पे 7 कॉन्टिनेंट से पहले देयर यूज्ड टू बी ओनली वन सुपर कॉन्टिनेंट. ठीक है. बट उसका उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट. ठीक है. So if you could travel through time to arrive at the Earth of a billion years ago, you would have hard time navigating a strange giant continent and a single planetary ocean. इसका मतलब क्या है कि भाई पहले के टाइम पे there used to be only one landmass, ठीक है, and one ocean. ठीक है. ठीक है. A supercontinent is the assembly of most or all the Earth continental block to form a single large landmass. There is no unanimity among the tectonists on a single definition of supercontinent. ठीक है. हॉफमैन ने 1999 में यूज दिस टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है. ही यूज दिस supercontinent to mean a clustering of nearly all the continents. ठीक है. According to the definition, Pengay is the supercontinent while Gondwana is not. Basically Pengay से ही हमारा गोंडवाना और एक और आपका landmass divide derive होता है. We'll discuss about it later. ठीक है. There are other scholars who consider Gondwana land a supercontinent of Precambrian period. ठीक है. तो Precambrian period basically geographical terms में अलग अलग टाइम पीरियड्स हैं. ठीक है. बिलियन ईयर्स के या कुछ मिलियन ईयर्स के. So those time periods divided into different names, right? So if I just give me a minute. ठीक है. So प्री कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर जो आपका एरा आता है, ठीक है, उसमें बेसिकली पॉइंट ये है कि उस टाइम पे जो अर्थ का क्रस्ट था वो स्टिल फॉर्मिंग. ठीक है. अर्थ का क्रस्ट आपको पूरी तरह से बना नहीं था. एंड इन दैट प्री कैम्ब्रियन एरा यू हैव हेडन, आर्कियन एंड प्रोटोजोइक टाइम पीरियड्स. ठीक है. और प्री कैम्ब्रियन के अलावा जो दूसरा टाइप है दैट इज योर फेनोरोजोइक एरा. ठीक है. इसके अंदर आपका पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक एराज हैं. ठीक है. तो जो डिफरेंशिएटिंग लाइन है वो ये है कि प्री कैम्ब्रियन एरा के अंदर योर क्रस्ट वाज स्टिल फॉर्मिंग. ठीक है. नाउ in the past there existed many subcontinents at different time. The position of continents have been accurately determined back to the early Jurassic period. ठीक है. तो Jurassic period के टाइम से लेकर आज तक मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग सुपर कॉन्टिनेंट्स रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑन अर्थ, राइट. तो ये ट्रैक कहाँ से हो सकते हैं, सिंस जुरासिक पीरियड. ठीक है. तो हाउएवर बियॉन्ड 200 मिलियन ईयर्स कॉन्टिनेंट पोजीशंस आर मच लेस सर्टेन. फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट्स. ठीक है. तो आज के टाइम पे जो हम फॉलो करते हैं दैट इज पेंगी. ठीक है. पेंगी पहले एक था, फिर दैट इट बिकेम 7, राइट. तो इसको हम कितने साल पहले तक मान सकते हैं, 300 मिलियन ईयर्स अगो. उससे पहले जाओगे तो पेनोशिया था. ठीक है. और सबसे पहले आपका यूआर विच इज वालबारा. ठीक है. Now, coming to the concept, what is supercontinent cycle? So, supercontinent does not last forever. ठीक है. आज के टाइम पे हम 1 से 7, 1 से 7 ब्रेक हुए हैं. हो सकता है कुछ मिलियन ईयर्स बाद हम 7 से वापस 1 हो जाएं या 7 से हम 14 में डिवाइड हो जाएं. ठीक है. So that could happen. Supercontinent does not last forever. A supercontinent cycle is the breakup of one supercontinent and the development of another. ठीक है. Pangaea was the last supercontinent we had, was formed by the continental fragment dispersed during the breakup of Pannosia. ठीक है. पेनोशिया तुम्हारा पेंगे से पहले वाला था सुपर कॉन्टिनेंट. तो जब पेनोशिया ब्रेक हुआ तो उसके जो भी तुम्हारे डिस्पर्स्ड हुए फ्रेगमेंट्स, उसके ब्रेकअप, जो पेनोशिया का जो ब्रेक डाउन हुआ था पूरा, उसके बेसिस पे आपका लेटर जो लेटर टाइम जोन था पेलोजोइक एरा के अंदर, उसमें फिर आपका पेनगे बना, राइट. तो हियर यू कैन सी द डायग्राम्स. पेनोशिया. ठीक है. दिस हैपेंड, पेनोशिया स्प्लिट. ठीक है. एंड देन असेंबल्ड पैनगेआ 200 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. तो ये जब ब्रेक होके वापस रिस्ट्रक्चरिंग हुई देन योर पैनगेआ फॉर्म. ठीक है. Pangaea created around 335 million years ago and started breaking around 200 million years ago. ठीक है. Now, so as part of the supercontinent cycle, you had the very first Pangaea. Like its predecessor, Pannosia, the giant continent of Pangaea also became the victim of Earth's internal heat.
ठीक है, बेसिकली जो भी स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग और आपका जो भी अलग अलग लैंड मासेस ज्वाइन होते हैं, इट ऑल कॉजेज बिकॉज ऑफ द इंटरनल हीट ऑफ अर्थ। ठीक है, हीट ऑफ अर्थ। एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी हम अभी आगे पढ़ेंगे। पैनगेया विच वाज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय एक्सटेंसिव वाटर। तो अगर एक लैंड मास है, ये पूरा अर्थ है और इसके चारों तरफ पानी है, तो इस वाटर बॉडी को कहते हैं पेंथालस्सा। ठीक है, पेंथालस्सा। ठीक है, ठीक है। इट बिगेन टू स्प्लिट अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, पैनगे ब्रोक इनटू टू लार्ज कॉन्टिनेंट मासेस नोन एज लॉरेशिया एंड गोंडवानालैंड। ठीक है, फॉर्मिंग द नॉर्दर्न एंड द सर्दर्न कंपोनेंट्स। तो जब आप आज के टाइम पे एक अर्थ को उठा के देखते हो, तो नॉर्दर्न साइड पे जितने भी आपके हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एंड साउथ में आपका जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया और अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, साउथ अमेरिका हो गया, ये सारा ब्रेक डाउन आपका जब पैनगेया ब्रेक हुआ, उसके बेसिस पे आपके जितने कॉन्टिनेंट्स बने, उसको ये सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो जब ब्रेक डाउन हुआ आपका पैनगेया से दो में, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड का, तो दैट्स हाउ द लेटर ऑन स्टेजेस में जितने भी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स और बाइफिकेट हुए, वो इन दोनों से ही ड्राइव हुए। ठीक है, subsequently Laurasia and Gondwana land continue to break into various smaller continents that exist today. ठीक है, now this was all about your सुपर कॉन्टिनेंट कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आता है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग थ्योरीज दी थी। वन वाज अब्राहम कटलिस, अ डच मैप मेकर, वाज द फर्स्ट टू प्रपोज द पॉसिबिलिटी ऑफ टू अमेरिकास। ठीक है, यूरोप एंड अफ्रीकास टू बी जॉइंट टुगेदर एज अर्ली एज 1596। तो 1596 में ही सेड कि भाई अगर एक अमेरिका हमें दिख रहा है, तो इसका आइडेंटिकल एक और ट्विन भी होगा। सेम गोज फॉर योर अफ्रीका एंड यूरोप टू। ठीक है, so this was the first theory that came up in 1596. Then Antonio Snyder drew a map showing that three continents together in 1858. ठीक है, but this was so much opposed to the scientific view then prevailing that nobody took notice. फिर आया 1910 में एफ बी टेलर ऑफ अमेरिका, इन्वोक द हाइपोथेसिस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, जैसे अगर अर्थ है या अगर इक्वेटर है, तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट, राइट, ये इसने कॉन्सेप्ट दिया एफ बी टेलर ऑफ अमेरिका ने। He invoked the hypothesis of horizontal displacement of continents or continental drift with a view to explaining the distribution of mountain ranges। ठीक है, तो इसके मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी। इसने जो थ्योरी दी थी वो ये थी कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्पैच जो हो रहा है, उसके बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई कि भाई कॉन्टिनेंट्स आर ब्रेकिंग अपार्ट। ठीक है, now came the main theory, continental drift theory by Alfred Wegener। ठीक है, so he was a German meteorologist, ठीक है, who put forth a comprehensive argument in the form of continental drift theory of 1912। ठीक है, Wegener was a climatologist who wanted to explain the changes of climates in the geological past। तो उसका जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि भाई 1912 से पहले जितने भी जो क्लाइमेट के चेंजेस हुए, राइट, क्लाइमेट चेंजेस, उसको स्टडी करने के लिए, उसके रीजंस को जानने के लिए ही वॉज वेरी क्यूरियस, राइट। There are several geological evidences to show that there have been important and large scale changes in the climates of the world in the geological past। ठीक है, तो उसका ये कहना था कि बहुत से ऐसे एविडेंसेस हैं which can conclude कि भाई हमारे जियोलॉजिकल पास्ट के बेसिस पे बहुत सारे मल्टीपल क्लाइमेटिक चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ही केम टू द कंक्लूजन कि भाई दो ही रीजन हो सकते हैं जिसके बेसिस पे इतना सारा डेविएशन हुआ है क्लाइमेट में। फर्स्ट इज दैट देयर कुड बी अ लार्ज मूवमेंट ऑफ द लैंड मासेस। ठीक है, और द सेकंड कुड बी द क्लाइमेटिक जोन्स हैव मूव्ड और दे हैव नॉट। ठीक है, तो एक तो उसने बोला कि भाई लैंड मास जो है उनका बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में या पास में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस हुए हैं। और दूसरा उसने ये बोला कि भाई द क्लाइमेटिक चेंजेस कुड हैपन बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है, climatic zones। So, so in the climates of the world in the geological past, he came to the conclusion that either the climatic zones have moved, or if they have not, then there have been a movement to the land masses। The distribution of climatic belts of the world is governed primarily by the sun, which has remained constant। ठीक है, तो जो दूसरा कॉन्सेप्ट था कि भाई क्लाइमेटिक जोन की वजह से आपका क्लाइमेटिक चेंजेस आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम,
बट इसको उसने हटा दिया। द रीजन वाई, बिकॉज ये जो चेंजेस आते हैं ये प्राइमरीली आपके सन की वजह से आते हैं, एंड सन हैज रिमेन एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम सिंस एजेस, ठीक है, तो उसकी वजह से कोई चेंजेस नहीं आ सकता। सो ही एक्सक्लूडेड दिस थ्योरी, एंड ही was very much assured that the movement of land masses has caused large number of climatic changes, ठीक है। It therefore appeared to be more probable that the land masses have changed their position. So according to Wegener, all the continents formed a single continental mass, a mega ocean surrounding by the name, ठीक है। The supercontinent was named as Pangaea, a Greek word which meant all of Earth, ठीक है। The mega ocean was called Panthalassa, meaning all water as shown in figure 1। फिगर अभी नीचे है ये रहा, ठीक है। तो इसने वही कॉन्सेप्ट फिर बताया कि भाई लैंड मासेस के मूवमेंट के बेसिस पे देयर यूज्ड टू बी ओनली वन अर्थ, दैट इज पेंगे, और उस अर्थ के सराउंडिंग जितना भी पानी था उसको एक ओशन बोला उसने, विच वाज नोन एज मेगा ओशन नोन एज पैंथेलेसा, मीनिंग ऑल वाटर एज शोन इन फिगर 1, ठीक है। वेगनर आल्सो इमेजिन दैट इन द कार्बोनिफेरस पीरियड द साउथ पोल वाज नियर द साउथ अफ्रीकन कोस्ट एंड नॉर्थ पोल ले इन द पैसिफिक ओशन, ठीक है। Wegener argued that around 200 million years ago the Pangaea began to split, ठीक है। The initial two blocks was Gondwana land and Laurasia, starting drifting away, and in between a shallow sea emerged by filling up the water from the Panthalassa, ठीक है। It was known as Tethys Sea, ठीक है। अभी देखो इसमें दिखाता हूँ। तो बेसिकली जब पेंगिया में ये तुम्हारा ये यहाँ से ये जो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हुआ, यू सी यहाँ पे अभी साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका बहुत पास पास हैं। तो जब पेंगे स्टार्टिंग टू ब्रेक, तो ये जो सारा पानी था ये इवेंचुअली बीच में आके इसने वो एरिया फुलफिल कर दिया, एंड दिस ओशन started to known as Tethys Sea. The present shape and relative composition of the continents is the result of the fragmentation of Pangaea by rifting and the drifting apart of the broken parts, ठीक है। ये देखो, अपर कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस होता है क्या है, कार्बोनिफेरस होता है व्हेन अर्थ वाज डोमिनेटेड एंड स्वैम्प्ड बाय फॉरेस्ट एंड कोल डिपॉजिट, मतलब कोई मैनकाइंड नहीं था, ज़्यादातर से ज़्यादा आपका फॉरेस्ट था एंड कोल डिपॉजिट था, ठीक है। तो इसकी वजह से ही सेड broken part. He called this drifting away of continent as the flight from the poles. He took help of the theory of isostasy, in which the continental block made of Cl, Cl हमने पढ़ा था सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर में ही पढ़ा था। सो मेड अप ऑफ Cl आर फ्लोटिंग ओवर द ओशियन मेड ऑफ सीमा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यू हैव Cl एंड यू हैव सीमा, राइट। तो Cl के जो जो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स थे जो कि विच आर मेड अप ऑफ Cl, ठीक है, वो आपके लैंड मासेस थे, सिंस लैंड मासेस, ठीक है, और ये था ओशन बेड्स, ठीक है। तो ये Cl आपके फ्लोट हो रहे हैं ओवर ओशन बेड सीमा, ठीक है। सो दिस वाज हिज कंक्लूजन, ठीक है। सो दिस वाज द अपर कार्बोनिफेरस, ठीक है। पहले पूरा एक था, फिर ब्रेक्स होना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, फिर ओशियन ने जगह भर दी जो इन बिटवीन द स्पेसेस दैट गॉट क्रिएटेड, ठीक है। अब इसने उसके साथ साथ कुछ एविडेंसेस भी दिए which to an extent proves what he says, right? So the variety of evidences were offered in support of continental drift theory, ठीक है। अब उसमें एक था the matching of the continents in zigs of it, ठीक है। The shoreline of Africa and South America facing each other have remarkable and unmistakable match, मतलब अगर तुम वर्ल्ड मैप उठा के देखोगे तो जो अफ्रीका की बॉर्डर लाइन है, ठीक है, और जो इधर से साउथ अमेरिका की बॉर्डर लाइन है, वो एक तरीके से जिग्सॉ पजल की तरह, अगर तुम उसको जोड़ोगे ना तो समहाउ इट सीम्स लाइक कि वो एक ही पार्ट रहे हैं पहले। इट मे बी नोटेड दैट मैप प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू फाइंड द बेस्ट फिट ऑफ द अटलांटिक मार्जिन वाज प्रेजेंटेड बाय, ये हिस्टोरिकल पॉइंट है, बट हाँ इसका एक जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है वो यही है कि द मैचिंग इवेंचुअली कंफर्म्स द कॉन्टिनेंट बीइंग वन पार्ट, ठीक है। द सेकंड वाज द रॉक्स ऑफ द सेम एजेस अक्रॉस ओशन, तो जो पत्थर उठा के देखे गए, ठीक है, ओशन के अंदर से, वो भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, विच शोज कि भाई एक टाइम पे ये सेम ही पार्ट रहे थे, ठीक है। द बेल्ट ऑफ एशियन रॉक्स ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। ब्राजील आपका साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, एंड वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। द अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट along the coastline of South America and Africa are of the Jurassic age. This suggests that the ocean did not exist prior to that time and earlier वो सारा एक ही पार्ट था, ठीक है। सिमिलरली ये तो एक और एग्जांपल है, Appalachian Mountains of North America
which came right up to the coast and then continue their trend across the North Atlantic Ocean. ठीक है, तो रॉक का भी एक फीचर है, ये पढ़ सकते हो, you can pause the video and take notes. Then third was Titilite. It is a sedimentary rock formed out of the deposits of glacier. The Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different landmasses of southern hemisphere. Southern hemisphere मतलब इक्वेटर के नीचे. At the base, the system has thick ticolite, indicating extensive and prolonged glaciation. Counterparts of these successions are found in Africa, Falkland Island, Madagascar, Antarctica, and Australia, besides India. ठीक है, तो अब अगर तुम इन बाकी कंट्रीज को एक साथ ऑब्जर्व करोगे, अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया अपार्ट फ्रॉम इंडिया, तो तुम देख सकते हो कि जियोग्राफिकली दे आर वेरी वेरी डिस्टिंक्ट. ठीक है, बट समहाउ द कॉमन जो सेडिमेंट्री रॉक मिलता है इन जगहों पे, दैट इज सेम. ठीक है, इसके अलावा प्लेसर डिपॉजिट, द occurrence ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन घाना कोस्ट. ठीक है, एंड द एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक इन द रीजन इज अमेजिंग फैक्ट. ठीक है, तो द occurrence ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन द घाना कोस्ट, ठीक है, एंड द एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक, ठीक है, in the region is an amazing fact. The gold-bearing veins are in Brazil, and it is obvious that the gold deposits of the Ghana are derived from the Brazil plateau. When the two continents lay side by side, तो घाना एंड ब्राज़ील को अगर तुम चेक करोगे तो दोनों में आप तुम्हें गोल्ड के डिपॉजिट मिलेंगे. सिमिलरली देर आर सर्टेन रॉक, ठीक है, विच आर नॉट फाउंड इन ईदर टू. ठीक है, एंड देन यू हैव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल. इसमें पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं, बट दिस Mesosaurus was a small reptile adapted to shallow brackish water. ठीक है, तो डायनासोर के टाइम पे Mesosaurus was a small reptile जो कि सिर्फ shallow brackish water में पाया जाता था. अब इसका जब skeleton मिला, the skeleton of these are found only in two localities. One was the southern Cape province of South Africa, and the second was Iravar Formation of Brazil. These two localities presently are apart, मतलब 4,800 किलोमीटर दूर है. बट सिंस मेसोसोरस का जो स्केलेटन है वो इन दो जगह पे मिला है, बिकॉज दे बोथ हैव द प्राइमरी शैलो ब्रैकिश वाटर, इट कंफर्म्स दैट यस अर्लियर ये जो तुम्हारा ब्राज़ील और साउथ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है और ब्राज़ील है, दीज टू आर सेम. ठीक है, Now, what were the forces of drifting as per the continental drift theory? ठीक है, तो वेगनर ने सजेस्ट करा that the movement responsible for the drifting, कि भाई किस रीजन की वजह से कॉन्टिनेंट्स अलग हो रहे हैं, was caused by the pole fleeing forces and tidal force. इसने दो रीजन सजेस्ट करे. ठीक है, फर्स्ट was pole fleeing. ठीक है, तो फर्स्ट was pole fleeing and second was your tidal force. ठीक है, द पोलर फ्लीइंग फोर्स रिलेट्स टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ये होता है तुम्हारा रोटेशन ऑफ अर्थ से. ठीक है, दिस वाज अकॉर्डिंग टू वेगनर द कॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड आउटवर्ड्स. ठीक है, अगर अर्थ को तुम देखो तो इक्वेटर पे तुम्हें सिर्फ अफ्रीका का मेन पार्ट मिलेगा. ठीक है, बाकी सारे या तो तुम्हें अपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगे या सर्दर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, सो दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द पोल फ्लिंग विच इज स्पेसिफिक टू द रोटेशन ऑफ अर्थ. ठीक है, टाइडल फोर्स जो उसने दूसरा रीजन दिया was ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन. ठीक है, एंड दिस वाज द मेन रीजन गिवन बाय वेगनर, बिकॉज मतलब ये जो प्राइमरी रीजन दिया गया ये उसके लिए दिया गया कि वाई द अमेरिका मूव टूवर्ड्स द वेस्ट. ठीक है, बाय वेगनर फॉर द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द अमेरिकास. ठीक है, वेगनर बिलीव दैट दीज फोर्सेस वुड बिकम इफेक्टिव एंड अप्लाइड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. ठीक है, अब सिंस इट वाज अ थ्योरी तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी थे. ठीक है, इसके क्रिटिसिज्म क्या था? इट इज क्लियर दैट द वेगनर हैड amassed an imposing array of evidences in support of his theory. ठीक है, बट इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और क्रिटिसिज्म भी थे. तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म वाज द ग्रेटेस्ट क्रिटिसिज्म हैज बीन द फोर्स ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग प्रपोज्ड बाय हिम, जो अभी हमने ऊपर इधर ये डिस्कस करा, पोल ऑफ फ्लाइंग एंड टाइडल फोर्स. ठीक है, द टाइडल फोर्स नीड टू बी 10,000 मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन एट प्रेजेंट टू मूव द कॉन्टिनेंट्स, विच इज नॉट पॉसिबल इन टूडेज टाइम. तो जो उसका सेकंड रीजन था, दिस सीम्स टू बी नॉट वैलिड. ठीक है, and the second criticism which he got was Wegener proposed that the Rockies and the Andes mountains chain are formed during the westward drift of the Americas. But if the Sial, which is the continents, is floating over Sima, ठीक है, then the Sima could not offer so much resistance as to cause folds and builds a mountain system. ठीक है, तो ये केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं सीमा और सियाल कॉन्टिनेंट ब्लॉक्स की,
that does not support his theory. तीसरा था the zigzag fit of the opposing coast of the Atlantic Ocean was not so complete. उसमें कुछ ना कुछ missing parts हैं, ठीक है? तो what happened to those missing parts, ऐसा कुछ conclusion वैगनर ने अपनी थ्योरी में नहीं दिया. Though there was a similarity in the structural and stratigraphical features of the two coasts of the Atlantic, it would not be quite correct to conclude that one was an extension of the other and they were joined together. ठीक है? So these are some of the criticism of Wegener's theory. ठीक है? So force of drifting, then you have criticism, then you have evidences which supports the evidences which supports the theory, the concept of continental drift theory, right? Continent and the concept of supercontinent. ठीक है? So this is all for today, right? In next lecture, what we'll discuss about the post-drift studies, in which we'll understand the convection current theory, mapping of ocean floors and sea floor spreading. Along with it, we'll also start with plate tectonics, ठीक है? Tectonics movements जो होती है, जिसकी वजह से हमारा primary earthquake आता है, ठीक है? We'll understand this in our next lecture. So thank you, keep learning.